So, very warm good morning to all of you. So, let's continue with today's article, 10th of May. So, today's article is Green Crosshair. A multi-pronged counter is warranted to tackle the EU's carbon tax plans. So, this is the topic of the article. So, let's continue with today's article. Green Crosshair. So, what is the meaning of crosshair? Crosshair is used to Crosshair is used to use the word to imply the sight of a weapon, usually a gun. So, what does this color green signifies here? The color green signifies actually it is not a color. This color it talks about some greenery, fertility, environment. Okay, and now it is being used as a site of weapon. Okay. A multi-pronged counter is warranted to tackle the EU's carbon tax plans. So multi-pronged, a plan that involves ways of dealing with the problem. So a multi-purpose means a multiple task has been taken to tackle this problem. Okay, is warranted to justify. So means whatever the ways or whatever the strategies they have taken out to counter this problem, so is being justified so that they can tackle the EU's carbon tax plan. Basically, the problem is EU's carbon tax plan, and so the so most of the strategies has been taken out to tackle this problem, and is this and why this whatever the ways they will talk about, and they are justifying it. उसको जस्टिफाई करना जो भी जिस भी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो भी हम तरीके अपनाएंगे उसको बस जस्टिफाई करना है. So starting this October, the European Union proposes to introduce a framework for levying a carbon tax on imports of products that rely on non-green or suboptimally sustainable process where carbon emissions are deemed to have not been adequately priced. तो इस अक्टूबर से क्या जो यूरोपियन यूनियन है ठीक है उन्होंने एक इंट्रोड्यूस किया एक फ्रेमवर्क ताकि वो कार्बन टैक्स इम्पोज करे. लिवाइंग में से इम्पोज होता है ठीक है ताकि वो एक कार्बन टैक्स इम्पोज करे ऐसे प्रोडक्ट्स पे जो कि वो इंपोर्ट करते हैं ठीक है जो वो मंगाते हैं अपनी कंट्री में जो कि नॉन ग्रीनेबल हो जो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली ना हो ठीक है जी और सब ऑप्टिमली सस्टेनेबल प्रोसेस या जो ऐसे बनाए गए हो जो कि जो ज़्यादा इन्वायरमेंटली फ्रेंडली नहीं हो ठीक है उतना सस्टेनेबल ना हो इन्वायरमेंट में where carbon emissions are deemed to have not been adequately priced and जहाँ पे कार्बन इमिशंस को एडिक्वेटली प्राइस नहीं किया गया है. दिस कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म CBAM will begin with import monitoring mechanism. तो ये एक मैकेनिज्म है जिसकी शुरुआत कब होगी जब इंपोर्ट कराएंगे ठीक है एंड reach a climax can culminate in the levy of duties as determined from January 2026. So this carbon border adjustment mechanism will be started when in January 2026. Okay. So they will start imposing taxes on the products from January 2026, and this mechanism will be imposed. The EU argues that CBM will ensure its climate objectives are not undermined by carbon-intensive imports. Will ensure its climate objectives and spur cleaner production in the rest of the world. तो EU अच्छा ये CBM क्यों लागू करना चाहते हैं. इनका आर्ग्यूमेंट ये है कि इससे वो क्लाइमेट ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाएंगे ताकि फिर जैसे वो कार्बन इंटेंसिव इंपोर्ट्स पे
ये टैक्सेस लगाकर एंड स्पर क्लीनर प्रोडक्शन इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. स्पर मीन्स थिंग्स. हाँ, ओके, मीन्स अगर जैसे टैक्सेस लगेगा सो दैट पीपल विल स्टार्ट मेकिंग द environmental friendly product and this will encourage them to go for the sustainable manufacturing of the sustainable product. This poses a significant threat to some of India's biggest exports to the trading bloc. तो इससे क्या होगा, ये बहुत बड़ा थ्रेट क्रिएट करेगा कि इंडिया के एक्सपोर्ट मार्केट में जो इंडिया एक्सपोर्ट करता है, ठीक है, इंक्लूडिंग आयरन ओर एंड स्टील विद कार्बन लीवाइज एस्टिमेटेड टू रेंज फ्रॉम 19.82% टू 52.7%. कैसे ये थ्रेट क्रिएट करेगा इंडिया के एक्सपोर्ट पे, क्योंकि जो वो आयरन और स्टील जो वो भेजेगा उस पर टैक्स लगाया जाएगा जिसका एटलीस्ट जिसका रेंजिंग ऑफ टैक्सेस क्या है 19.8% से 52.7%. ड्यूरिंग अ विजिट टू फ्रांस इन अर्ली अप्रैल, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल said it was too early to gauge the taxes impact on Indian exports. तो फ्रांस गए थे हम लोग के अप्रैल में, हम लोग के कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल, और उन्होंने क्या कहा, ये बहुत जल्दी है कि हम लोग गॉज द टैक्सेस इम्पैक्ट टू एस्टिमेट और डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ द वॉल्यूम. गॉज में इसके बाद टू एस्टिमेट or determine the amount or level or volume to gauge the taxes impact on Indian export as operational clarity was yet to emerge. कि ये बहुत जल्दी है, मतलब ये टैक्स लगाना इंडियन एक्सपोर्ट्स पे बहुत जल्दी है क्योंकि ये भी क्लियरिटी नहीं है कितना टैक्स लगेगा. एज ऑपरेशनल क्लियरिटी was yet to emerge. By last Thursday, top trade officials were more assertive and termed tackling this risk as one of the top items on the government's agenda. जो top trading officials हैं, were more assertive, having or showing a confident and forceful personality, and termed assertive means having or showing a confident and forceful personality. Were more assertive. So जो by last Thursday जो top trade officials हैं वो ज़्यादा confident हैं and tackling this risk as one of the top, और कॉन्फिडेंट है कि ये गवर्नमेंट के टॉप एजेंडा में है कि ये जो रिस्क है इस रिस्क को वो टैकल कर सकेंगे कि means whoever is involved in the trades, okay, and they are enough confident on the government that they will tackle this problem, and they are also giving the priority to this problem with several options being explored. Okay, it is critical that center reacts with greater alacrity to what may be considered as some as sophisticated trade barrier doused in greenwashing optics proposed by the EU. It is critical that center reacts with great alacrity. Alacrity means brisk or cheerful eagerness or willingness. तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि सेंटर जो है वो काफी रिएक्ट कर रहा है ग्रेटर इलेक्ट्रिसिटी मींस दे आर सो मच क्यूरियस अबाउट, ओके, मींस proposed by the EU with greater alacrity. Alacrity means brisk or cheerful readiness, eagerness, willingness to what may be considered as some sophisticated trade barrier doused to make something better, throwing a lot of liquid over him or her using greenwashing optics. Greenwashing optics means greenwashing is the process of conveying a false impression, misleading information proposed by the EU. It is critical that center reacts with greater alacrity. So, ये क्रिटिकल है कि जो सेंटर है वो रिएक्ट करेगा ग्रेटर एलिक्रिटी से greater to what may be considered some as sophisticated trade barrier.
जो कि एक तरह से ट्रेड बैरियर करेगा, ठीक है। डाउस्ट इन ग्रीन वॉशिंग ऑप्टिक्स, ग्रीन वॉशिंग ऑप्टिक्स मीन्स हियर is the process of conveying false information about how companies products are, means some misleading look there is means मतलब कोई प्रोडक्ट है जो कि कहा गया है कि ये सस्टेनेबल प्रोडक्ट है और इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट है, लेकिन वो कंपनी के द्वारा जो वो मैन्युफैक्चर किया, लेकिन वो एक्चुअल में वैसा नहीं है। मतलब दिस प्रोडक्ट इज ऑल्सो डैमेजिंग द इन्वायरमेंट, या जिस प्रोसेस से उसको मैन्युफैक्चर किया गया है तो उससे इन्वायरमेंट को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा गया है, ठीक है। तो उस चीज़ पे वो एक तरह से पानी मतलब फेंक रहा है। डाउस मीन्स टू थ्रो सम लिक्विड, मतलब कि उस चीज़ को वो जैसे छुपा रहे हैं, ठीक है। प्रपोज बाय द ईयू, ठीक है। मतलब कि ये गवर्नमेंट देख रहे हैं कि मतलब ये गवर्नमेंट सेंटर रिएक्ट कर रहा है कि कैसे ये जो ईयू का है, ठीक है, ये इस ट्रेड बैरियर को कैसे मतलब कि जो कि मतलब कि इस पे पानी डाल रहा है, ठीक है। कि लास्ट ईयर अबाउट अ थर्ड ऑफ इंडियाज आयरन स्टील एंड एल्यूमिनियम एक्सपोर्ट्स फॉर इंस्टांस वर शिप्ड टू द ईयू मेंबर्स। तो पिछले साल क्या हुआ कि जो वन थर्ड होता है इंडिया का आयरन स्टील एल्यूमिनियम एक्सपोर्ट किया गया ईयू मेंबर्स को। इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स द लार्जेस्ट एक्सपोर्ट ग्रोथ ड्राइवर इन रिसेंट ईयर्स would be impacted too। जो लार्जेस्ट ग्रोथ करते हैं एक्सपोर्ट करते हैं वो भी इम्पैक्ट होंगे। लार्जर प्लेयर्स अक्रॉस सेक्टर्स आर ग्रेजुअली टर्निंग टू ग्रीनर टेक्नोलॉजीज। जो बड़े बड़े प्लेयर हैं इस सेक्टर्स में, ठीक है, वो अब ग्रीनर टेक्नोलॉजी साइड टर्न हो रहे हैं, बट द ट्रांजिशन नीड्स टाइम। लेकिन जो जो मतलब जो चेंजेस लाना है, जो ट्रांजिशन है, मतलब कि एनवायरमेंटल साइड में ट्रांजिट जो होना है, ठीक है, उनको टाइम लगेगा। बदलाव जो करना है उसमें टाइम लगेगा। इवन मोर सो फॉर स्मॉलर बिजनेस टू मूव अवे फ्रॉम लेगेसी कार्बन हेवी टेक्नोलॉजीज। और छोटे जो बिजनेस है उसमें तो और ज़्यादा टाइम लगेगा, जो कि जो मोस्टली डिपेंडेंट है कार्बन हेवी टेक्नोलॉजीज जैसे कि ब्लास्ट फर्नेस स्टील मेकिंग टेक्नोलॉजी। The EU believes that carbon tax is compatible with World Trade Organization norms। जो EU का क्या मानना है, जो कार्बन टैक्स है, ठीक है, वो compatible है वो WTO को नॉर्म्स है, बट इंडिया इज लुकिंग टू चैलेंज दैट। लेकिन इंडिया उसको चैलेंज करेगा। इट मे ऑल्सो फ्लैग इनकम्पेटिबिलिटी विद द यूएस क्लाइमेट चेंज फ्रेमवर्क। ये जो है इट में ये also it may also mark flag means mark an item for attention or treatment in a specified way। ये एक तरह से पॉइंट आउट करेगा कि यूएन के जो क्लाइमेट चेंज फ्रेमवर्क है उसको उसको पॉइंट आउट उसके इनकम्पेटिबिलिटी को पॉइंट आउट करेगा, ठीक है। विच मूव्स कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर डेवलप्ड एंड डेवलपिंग नेशन विच रेज अ क्वेश्चन फॉर डिस्कस। जो कि एक तरह से क्वेश्चन उठाएगा कि मतलब कि डेवलप्ड और डेवलपिंग नेशन की अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी पे। बट इवन इफ दिस आर्ग्यूमेंट्स आर अपहेल्ड दीज टू एवेन्यूज लैक इन्फोर्समेंट ऑप्शन। अगर ये दो आर्ग्यूमेंट को भी करेक्ट माना जाए, कंफर्म किया जाए, सपोर्ट किया जाए, तो दीज टू एवेन्यूज ये जो दोनों अप्रोच है उसमें इन्फोर्समेंट में लैकिंग दिख रहा है, ठीक है। सो अ थ्रेट ऑफ रिटेलिएटरी टैरिफ्स ऑन ईयू इंपोर्ट्स इज आल्सो बीइंग वेव्ड इवन एज प्लान्स आर अफोर्ड टू क्वांटिफाई। जो थ्रेट ऑफ रिटेलिएटरी टैरिफ्स मीन्स मतलब कि किसी भी एक्शन का जवाब देना, रिटेलिएशन करना, ठीक है। Also being as plans are afoot to quantify the various carbon taxes levied in India। मतलब कि हो सके कि इंडिया उसको लागू ना करे, ठीक है। तो मे भी ऐसा हो सकता है कि ईयू जो है उसके उसके मतलब उसके एक्शन से हो सकता है वो मतलब एक तरह से रिटेलिएट करे और उस पर टैक्स इम्पोज करके, ठीक है, वो अपने इम्पोर्ट्स पे। Even as plans are afoot to quantify the various carbon taxes levied in India। और बहुत सारा प्लान भी ऐसा बनाया गया है कि वो मतलब कि बहुत सारा कार्बन टैक्स वो इम्पोज कर दे इंडिया पर, ठीक है। Having positioned itself as the voice of the global south,
इंडिया जो अपने आप को ऐसा पोजीशन पे रखा है कि वो पूरी आवाज़ है ग्लोबल, पूरी दुनिया की साउथ की आवाज़ है। इंडिया मस्ट प्ले दैट पार्ट टू द हिlt while at the helm of the G20 this year डिफेंस हैंडल। तो तो इंडिया एक प्ले करे एट द हेल्म, हेल्म मीन्स ऑफिशियली कंट्रोलिंग, जो इस पार्ट इस जो मतलब इस प्रॉब्लम को हैंडल करे। कहाँ पे हैंडल करे? जो भी G20 जो इस साल ऑर्गेनाइज हो रहा है, जो कि कौन ऑफिशियली प्रेसिडेंसी कंट्रोल कर रहा है, इंडिया कंट्रोल कर रहा है। एंड galvanize other nations to take on the use carbon tax framework and galvanize shock or excites into taking action means something, और ताकि जो दूसरे नेशंस है वो भी इस EU कार्बन टैक्स फ्रेमवर्क पे एक्शन ले सके। दिस चैंपियनिंग need not revolve around its own concern. Championing means vigorously support or defend the cause, but the far worse implications the CBM intends for poorer countries। ये जो डिफेंडिंग करना, जो डिफेंड करना, ठीक है, ये तो ये तो अपना ही, ये सिर्फ इंडिया का ही कंसर्न नहीं है, लेकिन अगर ये CBM लागू हो गया, ठीक है, तो ये पूरे कंट्रीज के लिए और भी नुकसानदेह होगा और वर्स कंडीशन आएगा, ठीक है। मेनी ऑफ देम whom rely heavily on the mineral resources than India does। और जैसे कि पूरे कंट्रीज यहाँ पे जो इंडिया से भी ज़्यादा डिपेंडेंट है नेचुरल रिसोर्सेज पे, जैसे आयरन हो गया, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, तो उनके लिए और नुकसान वर्स्ट कंडीशंस लाएगा। So this was today's article. Greener crosshair, a multi-pronged counter is warranted to tackle the use carbon tax plan. So that's all for today.